Morning students, today we start the remaining topic of the lesson number 6, messaging in object oriented terminology. To call the method to refer as a message. Due to the encapsulation, all the methods are handled by the object that recognize the method. Different classes may have the same method with the same name. For example, the class date has method display the object in the specific format. Suppose there are the other classes has the time and person, both having the method same time, same display. Display time is the specific format to display the detail of this person, respectively. When the method display in invoke the program, how to know the which method is to be executed. To determine the using the object to invoke the method. For example, if we display the called object of the person class, it executed the display method defining the person class. Object oriented define क्या करता है? It display the message. Okay. अब वो मैसेज क्या होता है जो एनकेप्सुलेशन ने प्रोटेक्ट किए रहते फॉर यूजिंग द डिफरेंट क्लासेस सेम मेथड एंड सेम नेम. बहुत सारे क्लासेस रहते हैं मगर क्या है एक ही मेथड और एक ही नाम से डिफाइन होता है, राइट. तो ऐसे फॉर्मेट क्या क्या होता है, दे हैव डिफाइन द डेट ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. अब वो किस तरह से डिफाइन करेगा, सेम नेम और सेम मेथड का होगा तो उसके डेट से, स्पेसिफिक डेट को कौन से डेट में वो क्रिएट किया गया. ओके. नेक्स्ट इज द पॉलीमोरिज्म. Polymorphism means many format. They are the different forms of the single method. Single method object operation. Assume that we have written in a function find the maximum of the numbers. Maximum numbers मतलब एक से ज़्यादा इंटीजर्स को स्टोर किया जाता है एक एरे में, और मेथड्स भी एक से ज़्यादा डिफाइन करते हैं एक सिंगल क्लास में. जैसे लिखा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफाइन वन मोर देन वन मेथड. एक से ज़्यादा मेथड को हम यूज़ करते हैं डेट इन अ सिंगल क्लास. दिस फीचर इज नोन एज फंक्शन एंड मेथड ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग मतलब एक ही क्लास में पहले तो एक ही मेथड यूज़ होती है, मगर एक से ज़्यादा अगर मेथड यूज़ कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग या तो फिर फंक्शन. Now, object-oriented program allow using the expression, using the operator or a object. For example, we use the expression date1, date2. Okay, in operands and the class is date. The operation is defined in a way of the different performance subtraction on the two numbers n1 minus n2. Here the same operation is given different meaning depending on the data types of the operands using. This type of the polymorphism achieve in a operator overloading. Operator overloading मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेटर को यूज़ किया जाना. Thus the polymorphism is achieved using the types of the overloading, function overloading and operator overloading. In general, the capability of the same names to different things in a different context is called overloading. एक से ज़्यादा नेम यूज़ करना, मेथड यूज़ करना, that is called the overloading. Now aggregation and the composition. When the objects are the composed of the object of other class, aggregation and a composition, it represent the as a part of the relationship between the class. For example, the motherboard of the system. तो देखो यहाँ पे एग्रीगेशंस और कंपोजिशन का डिफरेंट क्या है. देखो यहाँ पे एक नेम दिया है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, देन फुल नेम, स्ट्रिंग. उसके बाद एड्रेस डिफाइन किया है, राइट, द हाउस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड फुल एड्रेस. और यहाँ पे पर्सन में क्या डिफाइन होता है, नेम और एड्रेस. जो कॉमन क्या निकला, नेम और एड्रेस. दोनों को कंबाइन किया, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन और कंपोजिशन. कंटेन इन सेम क्लास. एक ही क्लास के अंदर दो मैंने ऑब्जेक्ट क्लास को डिफाइन किया, एक तो नेम एंड एड्रेस. पहले अलग अलग बनाया ऑब्जेक्ट को, नेम का और एड्रेस का, फिर दोनों में क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया. और यहाँ पे देखो एक वर्सेस कंपोजिशन में क्या डिफाइन है, द टू पर्सन ऑब्जेक्ट्स हैव द डिफरेंट नेम्स एंड द सेम एड्रेस. मतलब एक ही दो पर्सन है और दोनों का एड्रेस सेम है. जैसे हम भाई बहन का हो सकता है,
उसके डायरी में भी वही रहा, नाम है, एड्रेस सेम। यहाँ पे सिस्टर का भी वैसा है, नाम डिफरेंट, एड्रेस सेम। तो डेट इज कॉल्ड टू पर्सन्स हैव द डिफरेंट नेम्स बट द सेम एड्रेस। मतलब भाई बहन में होता है ना, दोनों की डायरी आप देख रहे हो तो एड्रेस दोनों का, डिटेल दोनों का सेम रहेगा, मगर जो दोनों का नाम है वो सब तो क्या रहेगा, डिफरेंट। यहाँ पे भी देखो कंपोजिशन डिफाइन किया है, नेम और पर्सन को डिफाइन किया गया है। इस तरह से आपको डिफाइन करना है कि दोनों, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दो ऑब्जेक्ट्स के नेम डिफरेंट है और मगर जो डिटेल्स है सेम क्लास, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। मतलब कि हमें एक ही कंटेंट को दो बार डालना पड़ता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। Inheritance is generally referred as is a kind of the relationship between the two class. In an appropriate, one class is a kind of the other class. For example, teacher is a kind of person, so all the attributes and the methods of the person has appropriate to the class teacher. Inherited all the attributes of behavior of the class person. The teacher has additional attributes of the subject, method, taking lecture, scenario. Class teacher has defined the class person. अभी देखो टीचर का एक क्या डिफाइन होता है, अगर एक टीचर का मैं क्लास बना रहा हूँ तो उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आ सकते हैं। एक तो टीचर का नाम, उसका सब्जेक्ट, और वो उसका लेक्चर कितने बजे से कितने बजे तक ना। यहाँ पे अगर मैं पर्सन में डिफाइन होता हूँ, कोई पर्सन का नाम बता बारे में लिख रहा हूँ, अगर मैं टीचर का बनाऊंगा तो क्या बनेगा, टीचर का सब्जेक्ट और वो कितने बजे लेक्चर लेने जाता है उतना ही डिटेल। अगर मैं पर्सन में बनाता हूँ इनहेरिटेंस का, पर्सन में क्लास बना रहा हूँ तो पर्सन का नाम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन और सेट बर्थ डेट। ओके, तो ये सारी थिंग्स एक पर्सन के अंदर आती है और टीचर के अंदर इतनी ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, जैसे पर्सन का आपको मालूम है कि इतनी उसकी ऑब्जेक्ट्स हैं, और एम्प्लॉय में क्या आएगा, उसकी एम्प्लॉय का नाम, उसकी बेसिक सैलरी और कंप्यूट द सैलरी। टीचर, सब्जेक्ट, लेक्चर। नाउ composition versus inheritance. Inheritance class define the other classes to share the reuse of the extent functionality. They exist a kind of relationship between the superclass and sub. सुपर क्लास मतलब जो मेन पर्सन का है उसका ही अंदर के क्या बनता है, एक सब क्लास इनहेरिटेंस में। और एक कंपोजिशन में क्या बनता है, क्लास डू नॉट हेरिटेट द अदर क्लास, वो दूसरे क्लास से कोई रिलेटेड नहीं रहता, उसका पर्टिकुलरली अलग ही एक सेपरेशन क्लास डिफाइन होता है। The class contains the attributes when the some attributes are of the objects of other class types. Okay. Now the completion of the lesson number 6. इसका MCQ आपको लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 के दोनों एक साथ मैं भेज दूंगा, बुक के रिलेटेड एंड ऑल्सो बोर्ड रिलेटेड जो भी है। नाउ नेक्स्ट है लेसन नंबर 7, फॉर द नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें।